శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించుకున్న గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ప్రతిస్మృతి నది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీభనోర్ణవం. ప్రాణానాయమ్య. ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మాః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సద్రవరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. యమమా భోజ్యోత్తరసాం తం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం. అస్యాం శుభదోస్య భవతో నారాయణస్య శ్రీయఃపదేవశో ఆత్మస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిదవేదన సర్వావృత్తంత్రవశుద్ధత్తం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేనుసాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారా సప్తశ్రమాంశేషు సరత్సరిత్స్వరిభూర్దేషు అపోబృహ్ణన్ బలిపాదేశే గృహాం దత్తాగం ధర్మం శర్మ ఇదమాపస్వా శుధమా శాంతా శాంతమా శుభా శుధమా పోతా పోతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా మృతాం దర్శాః పోతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పోతా సూర్య సరస్వతి ఆపో వాయుం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపో నమాపో సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందాగిషాపో జ్యోతిగిషాపో యోగిషాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భస్వరాపోం. अस्मिन् कुम्भे गङ्गाचरित्रावाहयामि एतेषदं वर्णे सहस्रमज्ञाः पाठाविदाः पुरत्र तेभ्योऽन्द्रशताद्विष्णऋषे देवां चन्द्रमसस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि यते प्लुतस्तुरात्र्याभरण
उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्घ्यानुसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जयाब्धिं शृङ्गेतं पुष्पध्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्त्यं दक्षिणां कुमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दिदामेत्वाश्चेदात्तमेत्वात्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां प्रेक्ष्यां दिशाभुधानामनादि या मे सुस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकरुणिले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जामावाहयामि तत्तत्निःसक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाट्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सर्वहारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां शून्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षणमस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढवत्सभागं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूरयः दिवि वचक्षुरातनं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रयंसते द्रविणोदा वीरवतिषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुतोपविशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यगच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् करुद्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुराक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिला प्रतिप्रश्ना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोऽर्थस्वासनः पूषा शुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्टेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामि अभोस्थानोर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमार्धस्थस्य भारेतेनः उषतीर्यो मात्रः तस्मारङ्गमापोस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्तान् आपस्सगुस्यो न भवन्तु पवमानस्य वर्जिनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता समनात्मा पठन्तमा देवजनाः पठन्तमनवधिया पठन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण वनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतकुम्रणु येन देवा पवित्रेण आत्मानं पणदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पठन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञमदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभीषणं षण्णास्तद्पदेः षण्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान् दशमासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीच्याहान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्तां उदीः चान्दिश्या पोषदेव वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामुदोदराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोहास्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेश्वानिमिव भवानः यत्यैमहे प्रजन्नो शश्वशने दत्तपदे शञ्चदशपदे वास्तोहास्पदे शिग्मया सुंसदा ते सक्षिमि शरण्यागात्मत्या आवक्षयमुदयगे वृण्णो यूयं पातस्तस्तभिः सदा नः अमीवः वास्तोहास्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखाससेवयेदनः
अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोस्यन्तः तमः कृतं वसति वीतशोको धातः प्रदादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताच्य समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणाः गुहाशयां निहिताः सप्त अतः समुद्राकरे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्माय सक्षरान्मः पुनः पाद्यानं सर्पयामि वरुणान्माय सक्षरतापासा गुडाभारन्वियदन् ताम्बूलं समर्पयामि सूर्यपुष्पृष्णां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च शेषाचले यन्माहात्म्यम् अन्यक्षेत्रेण न तत् क्वचित् तद्गतः श्रीनिवासस्य महिमा नान्यगः शुभः. శేషాచల క్షేత్రము సకల లోకాలలోకి దివ్యమైనటువంటి పుణ్యస్థలం. ఈ క్షేత్రానికి ఉన్నటువంటి మహిమని ఆదిశేషుడికి సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వర్ణింపనలవి కాలేదు. అటువంటి పరమ మహిమాన్వితమైనటువంటి ఈ క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి వేదము యోసి సోసి అంటూ కీర్తిస్తుంది. అంటే ఎవడివై ఉన్నావో వాడివే నీవు అంటూ కీర్తిస్తోంది. అంటే స్వామివారికి స్వామి சீதாதேவியை தன் மடிமீது அமர வைத்திருக்கும் திருக்கோலத்தை தரிசிக்கலாம். மகிஷனை சம்ஹாரம் செய்த தலமாதலால் இந்த தலத்திற்கு சற்று பெருமை கூட சேர்ந்துள்ளது. குன்றின் மேல் யோகராமன் கோவிலும் உண்டு. இந்த தலத்திலே மூலவர் ஸ்ரீராமர் சாலக்கிராம திருமேனியாக சீதாதேவியை தன் மடிமீது அமர்த்திய வண்ணம் அருள்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது தேவர்களையெல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம், அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்கள் எல்லாம் குழுமி வந்து அந்த பகவானை தரிசனம் செய்து கொண்டு அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காக காத்து கொண்டுள்ளனர். அப்படி அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமலையை சாற்றுதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சீதா தேவியின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி காகாசுரனை மன்னித்து ஸ்ரீராமனை அவனுக்கு உயிர் பிச்சை அளித்ததும் இங்குதான் என்கிறார்கள். எம்பெருமான் நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான், நடந்தான் என்னும் 4 திருக்கோலங்களில் அருளும் மிக அற்புதமான க்ஷேத்திரம் திருநீர்மலை. இந்த திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ கல்யாணராமரை தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் என்கிறார்கள். இதோ அந்த திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். அந்த ரக்ஷைகளிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு பூஜை செய்கிறார்கள். नागराजमावाहयामि सहर्षेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचमनं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरि ओम्. स्वस्ति नः मीतामश्विना भगः स्वस्ति देवे जनर्मः स्वस्ति भूषां सुरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्राह्महे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासोः भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभोः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदेकृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनधाता घ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षमनिष्ठनिं महद्भूतं वायुसं देवतानां
असरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाम पारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्याः त्रयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे सभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम् ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். இந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். இந்த திருத்தலத்தை திவ்ய தேசத்தை தரிசிக்க வந்த வால்மீகி முனிவர் தனது காவிய நாயகனாம் ஸ்ரீராமருக்கு இந்த கோவிலிலே சன்னதி இல்லாது கண்டு தாமே ஸ்ரீராம லக்ஷ்மண சீதா பிராட்டியுடன் சந்நிதி அமைத்து அதை ஸ்ரீ கல்யாணராமர் என்ற திருப்பெயரும் இட்டாராம். அதனால் தான் என்னவோ இன்றும் எண்ணற்ற பக்தர்கள் தங்களின் திருமணத்தை நடத்தி கொள்ள இந்த கோவிலுக்கு வருகின்றனர். அப்படி பக்தர்களின் உள்ளத்தில் கொள்ளை கொள்ள அந்த கல்யாண ராமனான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீராமன் என்றதும் பக்தர்களின் நினைவிற்கு வருவது ஸ்ரீராம ஆலயங்களில் மிக முக்கியமான கோவில் ராமசுவாமி கோவில். இந்த தலத்திலே வடக்கு நோக்கிய கர்ப்பகிருகத்திலே ராமசுவாமியுடன் சீதா பிராட்டியும் அமர்ந்துள்ளார். அருகிலே குடை பிடித்தபடி பரதனும் சேவிக்கும் நிலையில் லக்ஷ்மண சுவாமியும் வெண் சாமரம் வீசும் சத்ருக்னன் ஆகியோரும் உள்ளனர். எதிரிலேயே ஆஞ்சநேயர் ஒரு கையில் வீணையுடனும் மறு கரத்திலே இராமாயண சுவடியுடனும் அருள்வது இங்கே மிகவும் விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. அப்படி அந்த தன் சகோதரர்களுக்கு சேவைக்கு மகிழ்ந்த ஸ்ரீ ராமபிரான் ஆகிய திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்கவே உள்ளத்தில் மயக்க வைக்கும் கொள்ளை கொள்ளும் அவருடைய லீலைகள் நினைவிற்கு வருகிறது. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எல்லா நேரங்களிலும் அப்படியொரு பொறுப்புடன் செயல்பட்டார். சாதாரணர் அல்லர், பரம்பொருள். ஆனாலும் எத்தனை விஷயங்களில் தன்னை தாழ்த்தி கொள்கிறார் என்றால், அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக இருந்தார். அதுவும் எப்படி? அவன் தேரில் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் தோள் கொடுத்தார். ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தோளில் கால் வைத்துதான் அர்ஜுனன் தேரில் ஏறினான், இறங்கினான். இதைவிட ஒருவருக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொள்ள முடியுமா என்ன என்று கேட்கிறார்கள். அர்ஜுனனுக்கு மரியாதை வழங்கினார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். கம்சனின் சிறையில் இருந்த உக்ரசேனருக்கு விடுதலை தேடித்தந்து மீண்டும் அவனை ராஜ பரிபாலனம் செய்ய சொல்லி கௌரவப்படுத்தினார். தர்மபுத்திரனுக்கு ராஜ்யத்தை பெற்றுத்தந்தார். இவை அனைத்திற்கும் கண்ண பரமாத்மாதானே காரணம். அதனால்தான் அவருக்கு மானத்ஹா என்ற திருநாமமும் சொல்லி பூரிக்கின்றனர் பக்தர்கள். ஆன்றோர், அதாவது மானம் கொடுத்தவன், மரியாதையை வழங்கியவன் என்றும் அர்த்தம். இப்படி எத்தனை எத்தனை வெகுமானங்களை எவ்வளவு பேருக்கு வாரி வழங்கியிருக்கிறார் வள்ளல் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். எம்பெருமானுக்கு முடிந்த கரத்துடன் நாச்சிமார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இத்தனை பேருக்கு மானம் மரியாதையை வழங்கி காத்தருளி அவர் தன்னுடைய மானத்தை பற்றி கவலைப்படாதவனாக இருந்தாராம். பரந்தாமனான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பொய்யன் என்ற பெயர் எடுத்தார். பெண்ணிடம் ஈடுபாடு கொண்டவர் என்றும் எல்லோரும் சொல்லும்படி நடந்து கொண்டார். விஷமக்காரன், தந்திரக்காரன் என்று ஊரே சொல்லும்படி செயல்பட்டார். சூழ்ச்சிக்காரன் என்ன துரியோதனாதிகள் புலம்பும்படி நடந்து கொண்டார். அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியவர் என்று அனைவரும் பரிகசித்தார்கள். பாண்டவ சகோதரர்களுக்காக துரியோதனனிடம் தூதுவனாக சென்றான். பாண்டவ தூதன் என்று எல்லோரும் மனம்
எல்லோரிடமும் கொண்ட அறிவன் வாத்சல்யன் காட்டும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவான அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல் அந்த நாச்சிமார்கள் கூட எப்பொழுதும் எம்பெருமானை விட்டு இணை பிரியாதவர்கள். அதுவும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் விசேஷமான நாள். சிறப்பாக அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இருவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை, ஆத்ம ரக்ஷைக்கான ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் என்பது திருமண காட்சிகளிலே, திருமணங்களிலே முக்கியமான உதவியாக உபயோகப்படி முக்கியமான எடுத்துக்காட்டாகவும் முக்கியமான ஆதாரமாகவும் இருக்கிறது என்று கூறலாம். இதோ அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிப்போம் யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா. शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशं शुद्धाशीर्वान्मोक्तु मयि देवाद्रणमाजन्तां देव्याहोतारामणन्तपूर्वैरिष्टास्यावधन्वासुवीराः नक्ये जन्तुव्यान् हव्यागोत्रसत्यामन सौम्यस्तु देवनामानिगाः गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिगोडदामि शुद्धन्निमान् मत्यामि गुणं भास्मानं मरिमानस्यन्तु शिवानः सन्तः परिदश्चर्ना माता पृथिवी तोकसाता पूतहृदनेन सौम्या कृणध्वं रषणा होतैंशदे जातवेद भुवनस्त्रेते हिंसदपसोजनिषदेः अग्निमश्वत्थादव्यवागं समीगर्भार्जनेन्व्योम्यो भूः घृतः पदीको घृतयोन्रग्नि गतैः समिद्धोगतमस्यान्नं गतः पुषस्वासृता भवन्ति गतन्पुन् आयुः प्रजागम्रेमस्वासे सरस्वतेर्मनिस्वा दिवसतपस्वा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसादश्रीमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चोन्मदशिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यं त्रिगं सभे मित्रश्रवणं तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि लोकयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेयेस्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसा भूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परशरश पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितपसपना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं तत्तस्मानिन्द्रोर्तूर्ययुजमिन्द्रनिध्वं तुतूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु भोऽसि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिस्वा यज्ञदेवतावध्यतन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणय यज्ञं देवतावध्यतन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमः प्रणयतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयाणि यज्ञं संसादयन्तना इदमन्देहि गतपुष्टावदागसास्वोषं यजमानेन्यञ्चदेहि दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि 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 प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि
बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं ऐतनावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवस्वमावाहयामि उपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभां इन्द्राष्टनभाग्नेष्टनभां सोमाष्टनभाग्नेष्टनभां सोमाष्टनभाग्नेशमाभ्यञ्जष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभां ब्रह्मणेष्टनभां इन्द्राष्टनभां वसुभ्यष्टनभां मरुद्भ्यष्टनभां रुद्रेभ्यष्टनभामि अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनभां मित्राष्टनभां वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्यष्टनभां अस्यभ्याष्टनभां पूष्णेष्टनभां कक्षाष्टनभामि कक्षदेव सोमाष्टनभामि औपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनभामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरं त्रिपतिश्रयामि यज्ञे ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्तं रक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पति स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविताप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्ष वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसहितप्रसवा षष्टिसहस्राः नितमक्षामुद्भदमानया अद्यत्मात्मा जातवेदस्तेनेतस्य वदेजे तद्धेजास्मान् प्रिया पशुब्रह्मोर्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् अवपासनायुण्डे ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैत्यादेशानन्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेः स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसविताः प्रासावीः ओम भूः तिवरोत्योष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकारहोमान्ते स्वरमन्तरप्रियात डुनात्तप्रास्थात्तमतोदेवादिवैष्णवं होषे ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्लेतोः वृदानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः கலிநீக்கும் கண்ணனே கார்முகில் வண்ணனே அபிஷேகமூர்த்தியே அவதார புருஷனே பற்றற்ற நாயகா குற்றங்கள் களைந்திடும் காலத்தின் தலைவனே கலிகால தேவனே கோவிந்த 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 ஸ்ரீ வெங்கடேசனே கோவிந்த
வெண்கருட கொடியோனே திருக்கமலை விளை மார்பா ஆயிரம் பெயரோனே ஆதி அந்தம் நீயே உண்மையின் உருவமே உயர் ஞான தேவனே கண் கவரும் புண்ணியனே வேண்டியதை தந்தருளும் தாமரை கண்ணனே நான் மறை நாயகனே கோவிந்த 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 ஸ்ரீ வெங்கடேசனே கோவிந்த கண்ணனே எங்கள் மணிவண்ணனே புவியாளும் பெருமானே பூமகள் நாயகா வரமளிக்கும் வள்ளலே வேதமே ஞானமே மும்மூர்த்தி ரூபனே பரபிரம்ம தத்துவமே వెంకటేశనే శ్రీ శ్రీనివాసనే గోవింద 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 శ్రీ వెంకటేశనే గోవింద మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्या सप्ताभरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारहिक्तश्रीवराह कुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्यामणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलगावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमुनिरुत्यवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुस्रासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नोपरिवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रंचसागसान्मलि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतकमालकरवणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च यतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनगोमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिरैश्वरमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वत्सहस्रावसाने एकीकृतवर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्ठामद्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिभित्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण
गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदा पद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रीम् आङ्गिर्द बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गिरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्यवन अप्नुवान और्व वैदुल पंचार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रव त्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை ஒருமுறை செவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த மாங்கல்ய பூஜை என்பது நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கப்பட வேண்டியவற்றிற்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நினைக்கும் பொழுது உள்ளத்தை மயக்க வைக்கும் கொள்ளைகள், அதாவது அவருடைய லீலைகள் நினைவிற்கு வருகின்றன. கிருஷ்ணர் எல்லா நேரங்களிலும் அப்படியொரு பொறுமையுடன் செயல்பட்டார். சாதாரணர் அல்ல, பரம்பொருள். ஆனாலும் எத்தனை விஷயங்களில் தன்னை தாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக இருந்தார். அதுவும் எப்படி? அவர் தேரிலே ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் தோள் கொடுத்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தோளில் காலை வைத்துதான் அர்ஜுனன் தேரில் ஏறினான், இறங்கினான். இதைவிட ஒருவர் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ள முடியுமா என்ன? அர்ஜுனனுக்கு மரியாதையை வழங்கினார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். கம்சனின் சிறையில் இருந்த உக்ரசேனருக்கு விடுதலை தேடித் தந்து
மீண்டும் அவனை ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்யச் சொல்லி கௌரவப்படுத்தினார். தர்மபுத்திரருக்கு ராஜ்யத்தை பெற்றுத் தந்தார். இவை அனைத்துக்கும் கண்ண பரமாத்மாதானே காரணம். அதனால்தான் அவருக்கு மானதா என்ற திருநாமம் சொல்லி பூரிக்கின்றார்கள் ஆன்றோர்கள். அதாவது மானம் கொடுத்தவன், மரியாதையை வழங்கியவன் என்ற அர்த்தம். இப்படி எத்தனை எத்தனை வெகுமானங்களை எவ்வளவு பேருக்கு வாரி வழங்கியிருக்கிறார் அந்த கிருஷ்ண பகவான். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலை அப்பனாக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கு அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பகவானுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி எத்தனை பேருக்கு மானம் மரியாதை வழங்கி காத்தருளி அவர் தன்னுடைய மானத்தை பற்றி கவலைப்படாதவனாக இருந்தாராம். பரந்தாமனான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பொய்யன் என்று பெயரெடுத்தார். பெண்ணிடம் ஈடுபாடு கொண்டவர் என்று எல்லோரும் சொல்லும்படி நடந்து கொண்டார். விஷமக்காரன், தந்திரக்காரன் என்று ஊரே சொல்லும்படி செயல்பட்டார். சூழ்ச்சிக்காரன் என துரியோதனாதிகள் புலம்பும்படி நடந்து கொண்டார். அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியவர் என்று அனைவரும் பரிகசித்தார்கள். பாண்டவ சகோதரர்களுக்காக துரியோதனிடம் தூதுவனாக சென்றார். பாண்டவ தூதன் என்று எல்லோரும் சொன்னதை பெருமையாக கொள்ளவும் செய்தார். அப்படி எல்லோரிடமும் வாத்சல்யம் காட்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவான எம்பெருமான் இதோ இங்கே கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீ கண்ண பரமாத்மா எந்த நிலையிலும் எந்த காலத்திலும் தன்னை பெருமைப்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை. மாறாக ஒவ்வொரு சூழலிலும் தன்னை சிறுமைப்படுத்தி கொண்டபடியே தாழ்த்தி கொண்டபடியே இருந்தார். தன்னுடைய மான அவமானங்களை பற்றியெல்லாம் அவர் கவலைப்படவே இல்லை. மானத்தை பற்றி கவலைப்படாதவன் என்பதால் அவருக்கு அமானி என்ற திருநாமமும் அமைந்ததாம். நேர்மையை வலியுறுத்தவர் ராமபிரான். சூழ்ச்சியால் எதிரிகளை வீழ்த்தலாம் என அறிவுறுத்தியவர் கிருஷ்ணபிரான். ராமாயணம் நேர்மையையும் சத்தியத்தையும் வலியுறுத்துகிறது. அதே நேரம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சூழ்ச்சியால் வெல்லலாம் என்பதை மகாபாரதத்தின் மூலம் உணர்த்துகிறார். சூழ்ச்சியை அழிப்பதற்காகத்தான் சூழ்ச்சி கையாளப்பட்டது. பட்டயம் எடுத்தவன் பட்டயத்தாலே வீழ்வான் என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்துவதற்குத்தான் அத்தனை அவப்பெயர்களையும் தாங்கிக் கொண்டார் கண்ணபிரான். போற்றுவோர் போற்றட்டும், தூற்றுவோர் தூற்றட்டும், போகட்டும் கண்ணனுக்கே என்பதை அறிந்தவர்கள் தானே நாம். நம் வீட்டிலே மின்சாரம் போனால் உடனடியாக ஒரு விளக்கை தேடுகிறோம். வெளியில் உள்ள இருட்டை அகற்றுவதற்கு மின்சார விளக்கையும் எண்ணெய் விளக்கையும் பயன்படுத்தி போக்கிக் கொள்வது போல அது அக இருளையும் விரட்டி உள்ளே இருக்கும் வெளியேற்றுகிற பகவானை அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் நமக்கு இருக்கிறது தானே. பகவானானான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு நமக்கு வெளிச்சத்தை காட்டுபவர். கிருஷ்ணா என்று ஒருமுறை அழைத்தால் போதும், சேவகனைப் போல் ஓடோடி வருவார் நம்மிடம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு அந்த கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலை அப்பனாக எழுந்தருளியிருக்கும் காட்சியிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். அப்படி அனைவரிடத்திலும் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு பக்தர்களிடம் அருள் பாலித்தவன் அந்த கண்ணபிரான். அதேபோல் ராமாவதாரத்திலே அனைவருக்கும் நன்மை செய்து பித்ருவாக்கிய பரிபாலனன் என்றும் ஏகபத்னி விரதன் என்றும் சகோதர பாசத்தால் அனைவரையும் மிஞ்சியவன் என்றும் கூறுகிறார்கள் பக்தர்கள். அப்படி ராமாவதாரமாகட்டும் கிருஷ்ண அவதாரமாகட்டும் நமக்கு அனைத்து உண்மைகளையும் புகட்டியவர் இந்த ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரம் தான். ஆகவே பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று நம்மால் எவ்வளவு முடிகிறதோ ஒரு நாளைக்கு அப்படி ஜெபம் செய்து கொண்டே இருக்கலாம்.
அதேபோல் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று அந்த 2 வாக்கியங்களையும் எப்பொழுதும் மனதில் நிறுத்தி கொண்டு கூறிக்கொண்டால் நமக்கு எந்தவித பயமும் கிடையாது. பகவானிடத்திலே பக்தி பெருகும். அப்படிப்பட்ட அந்த பக்தியைத்தான் இப்பொழுது நாம் கைங்கரியங்கள் மூலமாக பகவானுக்கு செலுத்தி கொண்டு மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலையப்பனை சேவித்து கொண்டு இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்தது. மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். தந்த்ரயோ வேத அன்வசೃಜ್ಯಂತ தான் ஹஸ்தே குருத அத சீதா சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் வதூரிபாகம் சமேதவஸ்யத சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதன श्रिये जात श्रियाणिर्याय श्रियम्बजोचरद्रिभ्यो ददाति श्रियम्बसादामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वमुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिभागं समेतवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु திருமலையில் எங்கும் வைபோகம் திருவளர் செல்வி ஸ்ரீ
ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம் திருமலையில் எங்கும் வைபோகம் हयासन हव्यमूषयानो देवे जग स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुत अप्रासाभिः ओम भूतिविरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होक्षे ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुत अप्रसवा इमां लाजान्ति आज्यविगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणिमन्यताम् यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदीनागम्भ्रेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वादत्वया व्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेतुषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणिमन्यताम् यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदीनागम्भ्रेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेत्युषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणिमन्यताम् यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदीनागम्भ्रेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया व्यं धारावदन्यायव अतिगाहे महेत्युषः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूतिविरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यादन्नात् प्रास्तात् होतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्सुवा अतो देवाः वन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुततां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्र्यधानदेवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसदेतोः वृतानि विससि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रवागं दत्समिन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितप्रासाभिः ओम भूतिविरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं पुरुष्टात् तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्सुवा यतस्य कर्मणोऽतिरितं विद्यानो महाकर्मज्ञष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतादादेनां कामानां समुद्रत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्निन्वदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो रुदाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्ने षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्तनरः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्वेश्वाज्वं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्करमतिनोक्तं यज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेन्नमग्नपर्वान् प्रतीतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोः स्यश धीमहि स्वाहा समिदस्य तेजोस् तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तेष्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पदेर्भुक्तं ओषधो वनस्पतिं दर्भाशश्च भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं
ओषधि वनस्पति समन्तां भविषाक्तेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैपा सप्तर्षयः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपिदो वेदस्त्रिपिदो देवस्त्रिपिदो देवस्त्रिपिदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिं निर्वाचित्रिप्यन्तां दक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मग्रस्थाः नमतेन मग्रस्थाः सरस्तेन मग्रस्थाः देवप्रासाभिः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् उत्तरतो विष्णोर्नमसि सर्वान् समोच्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषम् दीर्घायुष्वाज बलाज शताज सदन्त्यवर्तते त्र्यायुषम् दीर्घायुष्वाज बलाज शताज सदन्त्यवर्तते त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानमूर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपशब्दमार्गस्तबाधेन उदतीरिव मात्रः सत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयातं सत्यज्ञे वर्चति हरस्ते भूयातं मयि मेधां मयि प्रजां मयि मनसा पुनातु कायेन वाचा महेन्द्रेर्वारुद्या नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः अग्नि आदि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। नमो வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம்
அஞ்சனமிடுதலை செவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த லக்ஷ்மி தேவியானவள் பூமி பிராட்டியாகவும் ஆண்டாளாகவும் சூடி கொடுத்த நாச்சியாராகவும் பகவானுக்கு சேவை செய்து அதிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு அந்த பாசுரங்களை உருட்டிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டே பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி அந்த கைங்கரியத்தை செய்தார்கள். அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் படலம், ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாணத்து உற்சவத்திலே இதோ எம்பெருமானுக்கு அணிவித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டியின் கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திரும்பவும் அதே மாலையை கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டியின் கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பூமி பிராட்டி அதை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த பூதேவி அதாவது பூமி பிராட்டி சூடி களைந்து கொடுத்த மாலையை மீண்டும் பகவானுக்கு அனுப்புகிறார்கள். பகவானுக்கு அணிவித்து சேவிக்கிறோம் நாம். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே மூவரையும் அமரச் செய்து அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. இதோ நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி இப்பொழுது சேவிக்கலாம் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை. அதாவது தலையில் பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்ட அர்ச்சக சுவாமி மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த அக்ஷதையை தூவார். அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை நிர்வகிக்க உள்ளார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।